Hello everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. My dear viewers and my dear students, in today's video we are going to study number system. We are going to see what is the definition of number system and what are different types of number system. I must tell you, नंबर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें डिफरेंट सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं और हर एक सिम्बॉल का अपना इम्पोर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम इज a system which consists of different symbols where each symbol has its own significance. Now, for example, first of all, we will talk about binary number system. Now here, the binary number system is a system which has only two symbols. Binary number system. तो ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो सिम्बॉल्स होते हैं. एक होता है 0 एंड सेकेंड होता है 1. अब इसका मतलब ये है कि इस नंबर सिस्टम का यूज़ करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो, लेकिन उस नंबर में 0 और 1 के सिवा कोई और लेटर या सिंबल नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट हियर नंबर 1011 and if I write here base 2, then it means it is a valid binary number. अब देखिए, मैंने जो बेस 2 यहाँ पे लिखा है, that is the radix of a number system. Now one question might be hunting in your mind, what is the radix of a number system? So radix of the number system is nothing but total number of symbols used in a particular number system. So in binary number system, total number of symbols we have used here are 2, 0 and 1. That's why I have written at the base 2, so that easily हम identify कर सकें the given number is a binary number. Let's take another example. 10110 at the base 2. So yes, this is also a valid binary number because here we have used only two letters, only two symbols, 0 and 1. तो इस तरीके से जो नंबर सिस्टम सिर्फ दो सिम्बॉल से बनती है, 0 and 1, उसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम. एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, base or the radix of a number system is the total number of symbols used in a particular number system. Now we will talk about the next type of number system. The next type of number system is an octal number system. अब ये octal number system क्या होती है, इसे हम डिटेल में सीखेंगे. सो ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें टोटल 8 सिम्बॉल्स रहेंगे और वो 8 सिम्बॉल्स कौन से रहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर हम 8 सिम्बॉल्स जो यूज़ करने वाले हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. A system which consists of 8 different symbols like 0 to 7 is called as octal number system. The base of this number system is 8 because हम यहाँ पर 8 symbols use कर रहे हैं. अब देखिए, अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 323104, एनी नंबर मैंने लिखा है इन सभी सिम्बॉल्स का यूज़ करके या फिर इनमें से कोई सिलेक्टेड सिम्बॉल्स का यूज़ करके, और उसके बेस में अगर मैं लिखती हूँ 8, तो ये हो जाता है वैलिड ऑक्टल नंबर. चलिए हम एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है विच इज़ द नंबर, मतलब ये बाइनरी नंबर है या फिर ऑक्टल नंबर है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज 0 and 1 तो हम ऑक्टल में भी यूज़ करते हैं और हम बाइनरी में भी यूज़ करते हैं. बट अगर यहाँ पर क्लियरली मैंने 8 लिखा हुआ है बेस में, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ वैलिड ऑक्टल नंबर. उसी तरीके से आई कैन टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक, ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर बेस 2, देन इट इज़ 100% a binary number. So that is the difference between the binary number and the octal number. Let's see the third type of number system, which is the decimal number system.
वैसे तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होती है वो बहुत पॉपुलर नंबर सिस्टम है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम जितने भी नंबर्स लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब ऐसी नंबर सिस्टम जिसमें आप 0 से 9 तक सिम्बॉल्स यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9. So we can easily define decimal number system as a number system in which we use 10 different symbols from 0 to 9 is called as decimal number system. The base of this number system is 10. तो देखिए आप जो भी डे टू डे लाइफ में नंबर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर नंबर 256, ओके, तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ओके। और यहाँ पर अगर आप बेस में 10 लिखते हो तो 100% हम श्योर हो जाते हैं कि येस दिस नंबर इज रिटन इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। वी कैन ऑल्सो सी मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल टू यू लाइक, and then I ask you which type of number is this, means in which number system it is written. So naturally there is a question कि 01 बाइनरीज में भी आता है, 01 ऑक्टल में भी आता है और 01 डेसिमल में भी आता है. बट अगर यहाँ पर क्लियरली इसके बेस या फिर रेडिक्स में लिखा हुआ है 10, यू कैन ईजिली स्पीक लाइक this number is written in a decimal number system. Okay, instead of that, if you find here 2, then you will say that this number is written in a binary number system. और if 8 is present over there, you will say कि ये नंबर जो है वो octal number system में लिखा हुआ है. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की. सो द नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. नाउ अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे हेक्सा देन डेसिमल, तो आपको ये समझ में आ जाता है हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मतलब 10. 6 + 10 इज 16. तो ऐसी नंबर सिस्टम जिसमें 16 सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाँ, यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि यहाँ पे हम नंबर 10 नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर हम नंबर 10 यहाँ पे लिखते हैं तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0. और यहाँ नंबर सिस्टम की यही स्पेशलिटी होती है कि एक बार जो आपने नंबर यूज़ कर लिया या सिंबल यूज़ कर ली, उसे आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते. तो इंस्टेड ऑफ 10 वी राइट हियर A, मतलब यहाँ पर A का मीनिंग होता है 10, देन B मीन्स 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14 and F means 15. Okay, so all together in this number system there are 10 numbers we use and 6 alphabet characters we use, alphabet letters we use. That's why the hexadecimal number system is also called as alphanumeric number system. Let's take example of hexadecimal number system. For example, A12 and base 16. Then you can say yes, this is a valid example of hexadecimal number system. Okay, again one more example I will take 10110. Okay, if I have not mentioned here base or radix, then again the same kind of confusion can arise in your mind, like whether this number is binary number or octal number or decimal or hexadecimal. But if I write here clearly 16, then yes, this number is a valid hexadecimal number. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नंबर सिस्टम, जिस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में जो सिम्बॉल्स आते हैं, आपको सिर्फ उनमें से ही कोई भी सिम्बॉल कितने भी बार आप यूज़ कर सकते हो एंड उसका प्रॉपर बेस आपको लिखना है. मैं आपको फिर से बता दूं, बेस और रेडिक्स आर इक्वल थिंग्स एंड बेस और रेडिक्स इज नथिंग बट total number of symbols used in a particular number system. For example, in binary we use 2 symbols, so that's why base is 2. In octal we use 8 different symbols, so yes, the base is 8.
In decimal we use 10 different symbols, so that's why the radix or base is 10. But in hexadecimal number system the base or radix is 16. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली है अलग अलग टाइप की नंबर सिस्टम। और अब हम सीखने वाले हैं किस तरीके से कन्वर्शंस किए जाते हैं एक नंबर सिस्टम में लिखे हुए नंबर को दूसरे नंबर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है और आप चाहते हो कि आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो किस तरीके से कन्वर्शन किया जाता है उन्हें ही कहा जाता है कन्वर्शन मेथड्स या फिर उसे कहा जाता है कन्वर्शन टेक्निक्स। तो सबसे पहली टेक्निक जो हम सीखने वाले हैं वो ये, हाउ टू कन्वर्ट एनी इंटीजर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंटीजर डेसिमल जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, उसे कहते हैं इंटीजर डेसिमल नंबर। और हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट एनी इंटीजर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। मतलब हमें ये देखना है कि कोई भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मेथड में हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन नंबर इज 20। सिंपल, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल नंबर 20 एंड दिस इज अ डेसिमल नंबर बिकॉज मैंने यहाँ पे बेस में 10 लिखा हुआ है एंड इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाइनरी बेस 2। ओके, तो इसका मतलब होता है कि 20 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस मेथड को सीखने के लिए आपको ये समझना होगा कि कौन सी स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं एंड हाउ टू अप्लाई डिफरेंट स्टेप्स टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। फ्रेंड्स, स्टेप्स आर वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। So number 1, the very first step is consider the integer decimal number which is to be converted into binary number. For example, here the number is 20, so I have considered the number 20. Step number 2, आपको उस नंबर को continuously 2 से डिवाइड करना है जब तक कोशेंट 0 नहीं होता है। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। तो आई विल राइट हियर 2 और मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली 10 होगा। और यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल करनी है, आपको रिमाइंडर साइड में लिख लेना है। राइट हैंड साइड में हम रिमाइंडर लिखेंगे। अब देखो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, तो यहाँ कोई रिमाइंडर बाकी नहीं है, तो रिमाइंडर बचा 0 और उसे मैं साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड इट बाय 2। ओके, तो 2 5 10, यहाँ पर रिमाइंडर फिर से बचेगा 0। फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 2 4। तो यहाँ पर देखिए 5 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपको रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, अब इसके बाद आप 2 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 2 आप करते हो तो फिर से आपको रिमाइंडर यहाँ मिल जाएगा 0। ओके, लेकिन 1 मिलने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको फिर से 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी स्टेप्स ये बोलती है डिवाइड द नंबर बाय 2 रिपीटेटिवली टिल द कोशेंट बिकम्स 0। अभी तक हमें कोशेंट 0 नहीं मिला है, तो मैं फिर से डिवाइड करूँगी 2 से, तो यहाँ मिलेगा 2 0 0, तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। अब आपको करना क्या है, आपको ये सारे जो रिमाइंडर्स हैं इन्हें रिवर्स डायरेक्शन में कलेक्ट करना है। मतलब कैसे आप कलेक्ट करोगे, आप कलेक्ट करोगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस तरीके से, और उनको सीक्वेंस में लिखना है ताकि आपको आंसर मिल सके। तो अगर मैं बॉटम से टॉप जाती हूँ तो हमें मिला हुआ है 1 0 1 0 0। सो आई विल राइट हियर द करेक्ट आंसर। I will choose different color to show the answer so that it will be highlighted. Okay, so it is 1 0 1 0 0. So here the answer is 1 0 1 0 0. और हाँ, आपने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर हम यहाँ बेस में लिखेंगे 2। देखा आपने यहाँ पर देखा ही है कि हमने कितनी आसानी से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। चलिए एक बार मैं स्टेप्स वापस आपको बताती हूँ और इस बार हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं इस मेथड में। देखिए सबसे पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ नंबर 5। नंबर 5 इज़ अ डेसिमल नंबर और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो वापस से मैं स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ।
कंसीडर द बाइनरी नंबर, कंसीडर द डेसिमल नंबर विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो नंबर 5 को मैंने कंसीडर किया है। इसके बाद मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगी तो 2 2 4 हो जाएगा। एंड राइट रिमाइंडर एट एवरी स्टेप। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, 5 माइनस 4 करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 1। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 2। और यहाँ पर देखिए आप 2 माइनस 2 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 0, यहाँ पे बचता है रिमाइंडर 1। और ये सारे रिमाइंडर्स को आपको रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एंड राइट देम इन अ सीक्वेंस। सो हियर 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है 1 0 1 बेस 2। सो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल मेथड से किसी भी इंटीजर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कोई भी डेसिमल नंबर लीजिए और ट्राई कीजिए उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले बार फिर से मिलूंगी नई टॉपिक्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।